Father in heaven, thank you for this beautiful time. इस सुंदर समय के लिए स्वर्गीय पिता को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। Father Lord, thank you for your marvelous presence. ओ आपके सामर्थ्य उपस्थिति, अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। Let your name be glorified through us. ओ आपका नाम हमारे द्वारा महिमान्वित होने पाए। Father Lord, let some lions arise from this hall. ओ परमेश्वर, इस जगह से कुछ सिंह उठ खड़े होने पाए। Father Lord, you speak through us through your word. ओ अपने वचन के द्वारा हमारे द्वारा बात करे। So we are submitting and surrendering ourselves into your mighty hand. मैं आपके हाथों में आने वाला समय को देता हूँ। In Jesus' most precious name we ask. ओ यीशु के अद्भुत और बहुमूल्य नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Please be seated. Please be seated. अपनी जगह में बैठ जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Blessed be the name of the Lord. Glorify this beautiful afternoon. और परमेश्वर का नाम को महिमा देते हुए और इस सुंदर शाम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। So I greet you all in the name of Lord and Savior Jesus Christ. मैं आप सबों को यीशु मसीह के नाम से आप सबों को बधाई देना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Each and every moment that we are spending at the presence of God is making us and molding us to do something great. और हर एक समय, हर एक पल जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, वो सारा पल हमको परमेश्वर की महिमा और बड़ा काम करने के लिए तैयार करता है। Hallelujah. हालेलुया। And I hope and I knew that you people, those who are here, you came here in order to do something great for the kingdom of God. मैं आशा करता हूँ और मैं ये जानता हूँ जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि आप कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ा करना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So this afternoon I would like to tell you something very important as a servant of God and as a pastor, as a leader, and that's something very important that we need to keep in our life. ये शाम के समय हम लोग एक पास्टर के हिसाब से, एक लीडर के हिसाब से मैं आपको कुछ विषयों के बारे में बताऊंगा जो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी होगा। So actually when we come to the book of Psalms number 121 verse number 4, Bible says like this. जब हम भजन संगीता उसका 121 verse number 4, 121 उसका 4 में पढ़ेंगे। Behold, he that keep Israel shall neither slumber nor sleep. ओ देखो, जो इज़राइल का रखवाला है वो ना सोता है ना गाना लिखा है। Yeah, he will not sleep or he will not slumber. ऊँघता है। ऊँघता, Yeah. हाँ ऊँघता, ना सोता है ना ऊँघता है। There we can see the character of our Lord. यहाँ पे हम परमेश्वर का एक चरित्र को देखते हैं। So, you know, as a children of God, हम परमेश्वर के संतान होने के कारण so we need to follow the same character as our Lord has. हम उसी चरित्र को ही हमको उसको फॉलो करना है। So we are living in an end time. क्योंकि हम एक अंतिम समय में हैं And we all are expecting an end time revival. और हम आशा करते हैं कि अंतिम समय का एक उद्दीपना, एक रिवाइवल हो। So I would like to tell you whom God is going to use for this revival. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर इस बेधारी के लिए किसको इस्तेमाल करे। Here, you know, the character of God is he will not sleep and he will not slumber. और यहाँ पे हम देखते हैं जो परमेश्वर का चरित्र है वो ना सोता है ना ऊँघता है। Then as a children of God, what we need to do? तो हम परमेश्वर के संतान होने के कारण क्या करना है? So, you know, God's character, he will not sleep and he will not slumber. और परमेश्वर का चरित्र ऐसा है कि ना सोता है ना ऊँघता है। Then as a children of God, what we need to do? तो हम एक परमेश्वर के संतान, उसी प्रभु के संतान होने के चलते हमको क्या करना है? I'm not speaking about a normal sleep. मैं जो साधारण सोना है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। And if you are a healthy person, at least you need 6 hour to 8 hour sleep.
मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें एक स्वास्थ्यवान सोना 6 से 8 घंटा सोना आवश्यक है। Now, I'm not speaking about that sleep. मैं उस वैसा वाला सोने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। And if you are a person sleeping more than the 6 hours, sleeping more than this 8 hours, it is for you. जो If you are a person sleeping more than 6 hours or sleeping more than 8 hours, this message is specially for you. ये आज जो लोग, ये उन व्यक्तियों के लिए है जो लोग 6 घंटे 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं, उन लोगों के लिए आज का मैसेज है। And if you have a fever, you are sleeping for 12 hours, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 12 घंटा भी सोते हैं और क्योंकि आपको बुखार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। And after a long journey, you came to Kerala and you roam here and there. After a long journey, you got tired, and if you sleep for 12 hours, no problem. आप केरला जाके घूम घाम के आ रहे हैं और बहुत लंबा जर्नी करके आए हैं और थकान के चलते अगर ज्यादा सो रहे हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। But what is problem? I will tell you. लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। As you are an young person, और आप एक ऐसे साधारण व्यक्ति होते हुए, as you are an young person, 23 years or 25 years or 30 years or 35 years, but still sleeping for 8 or 9 or 10 years, again sleeping, खाने के बाद sleep कर रहे हो, so then problem. आप एक युवा अवस्था में 22 साल है, 25 साल है, 35 साल हो चुका है, आप क्या कर रहे हो? आप 8-10 घंटे 6-8 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो, खाने के बाद सो रहे हो, उठने के बाद फिर सो रहे हो, और ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रॉब्लम है ये। So the deep sleep, actually it's a spirit. तो ये ऐसा वाला गहरा सोना, गहराई वाला सोना, ये वास्तव में एक आत्मा है। Morning 5 o'clock alarm ringing, and you saw the alarm and putting off the alarm, you are sleeping again, and 9 o'clock alarm ring again, you saw the alarm, you put off and you cover your head again sleeping. That's a problem. आप 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, देखते हैं जब घंटी बजता है और आप देखते हैं, फिर उसको बंद करके फिर सोते हैं। 9 बजे फिर से अलार्म बजता है और उसको भी देख के फिर बंद करके पूरा कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। Somebody here are sleeping more than 8 hours. That's why God is speaking like this. और यहाँ पे ऐसे व्यक्ति जो 8 घंटे से ज्यादा सोता है, उसके साथ परमेश्वर बात कर रहा है। So what the Bible says about a soldier, I will tell you. वो बाइबल पर एक योद्धा के बारे में क्या बताता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। Isaiah chapter number 5 verse number 27. और यशाया उसका 5 उसका 27वां पद को अगर पढ़ेंगे, None shall be weary nor stumble among them, none shall slumber nor sleep, neither shall the girdle of their loins be loosed. वो वहां पे ना कोई सोगा, ना कोई आपके अंदर कोई सोएगा, और ना ही पढ़ी दो क्यों यार। Yeah, 27, 5 verse 27. हाँ। उनमें कोई थका नहीं, ना कोई होकर खाता है, कोई ऊँघने या सोने वाला नहीं, किसी का फेंटा नहीं खुला और किसी के जूतों का बंधन नहीं टूटा। Did you hear? Yeah. If you are a child of God, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, you have to be awake always in the spirit. आपको एक जागने वाला व्यक्ति आत्मा में जागरूक होना है। Don't fall into a spiritual sleep. आप आत्मिक शयन में ना जाएं, And don't fall into a physical sleep more than 8 or 10 hours. और एक शारीरिक सोने में 8 घंटे से ज्यादा मत सोइए। So today, this afternoon, the topic what we are going to speak is sleep. आज इस शाम के समय में जो हम विषय के बारे में बात करना चाहते हैं, उसका नाम है सोना। Then when I spoke about sleep, then pastor asked me, you are preaching about the sleep, then in your preaching somebody is sleep, what will you do? जब ये बता रहे थे मुझे कि आज का टॉपिक सोना है, सोना मतलब वो वाला सोना नहीं, सोना वाला सोना, तो वो मुझे बता रहे थे आज का टॉपिक सोना है, तो मैं उनसे पूछा कि अभी जब आप प्रीचिंग करेंगे सोने के बारे में और बीच में अगर कोई बैठा हुआ व्यक्ति सो जाए तो क्या होगा? I will tell you the answer of that question also in between this message. और उसका उत्तर भी आज की इस अभी प्रचार में ही मैं देने वाला हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So David, he was a king.
तो दाऊद वो एक राजा था and he had a great desire to build a house for the kingdom of God. और वो उसके अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो परमेश्वर का घर बनाए। So what he is telling, what he is telling, वो क्या बोल रहा था मालूम है? he's telling Psalms number 132 verse number 5, until I find a place for the Lord and habitation for the mighty God of Jacob, I will not give sleep to mine eyes or slumber to my eyelids. और वो यहाँ पे भजन संहिता 132 उसका 4-5 में लिखा गया है, मैं जब तक परमेश्वर का लिए घर ना बनाऊं और परमेश्वर को रहने का जगह ना दूं तब तक मेरे आंखों में मैं झपकी नहीं लगाऊंगा, मैं सोऊंगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। So you must have that desire. और तो आपको भी उसी तरह का इच्छा को रखना है। Until and unless I receive something from God, I will not sleep or slumber. जब तक मैं परमेश्वर से कुछ पा ना लूं तब तक मैं सोऊंगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। God is not looking lazy people. That's what we are hearing from the morning itself. परमेश्वर एक नींद लेने वाला व्यक्ति को परमेश्वर नहीं ढूंढ रहा। आज के शाम वही चीज को हम देखेंगे। God is always looking the people, those who have the enthusiasm for the kingdom of God. ओ परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो परमेश्वर के लिए एक तृष्णा रखते हैं, एक भूख रखते हैं। So you want to be enthusiastic for the kingdom of God. आपके अंदर परमेश्वर के राज्य के लिए एक जुनून होना चाहिए। The life what is dwelling inside you is not a sukha life. It's not a dry life. आपका जीवन एक सूखा जीवन नहीं होना चाहिए। Actually two types of lives are there. Two types of life. दो प्रकार का जीवन है। In Greek, one type of life is called sukha life. और ग्रीक में एक प्रकार का जीवन है जिसको बोला जाता है सूखा जीवन। Another type of life is called zoe. और एक और दूसरा प्रकार का जीवन है जिसको बोला जाता है आनंद। Imagine a person who is there in the ventilator. He has life. और आप देख सकते हैं आईसीयू में वेंटिलेटर में जो रहता है वो ऑक्सीजन में रहता है, उसके पास भी जीवन है। But with that life he cannot run or he cannot walk or he cannot hit anybody. और वो उस प्रकार का जीवन से ना वो चल सकता है, दौड़ सकता है, ना ही किसी को मार भी सकता है। Yeah, the person who is lying there in the ventilator, if you go and itch that person, he will not beat you. और जब वो उस वेंटिलेटर में पड़ा हुआ व्यक्ति को जाके अगर आप उसको खुजाएंगे, हिलाएंगे तो वो उठ के आपको नहीं मार सकता। And if you steal something from him, he will not follow you. और जब उसके पास से कोई चीज अगर चुरा के आप भागो तो वो आपके पीछे नहीं भाग सकता। Why? क्यों? He has life, but with that life he cannot do anything. क्यों? क्योंकि उसके पास जीवन तो है लेकिन उस वैसा जीवन के साथ वो कुछ नहीं कर सकता। But imagine here the man of God is here. और तो सोच के देखिए यहाँ पे एक परमेश्वर का दास यहाँ पे है। And if I steal something from him and if I do something from him, what he will do? He will react suddenly. और अगर मैं उनको मारूं या फिर उनका किसी से कोई सामान चुरा लूं तो वो रिएक्ट करेंगे, मार भी सकते हैं। Because the life what he is having now is a zoe life. क्योंकि वो जो जीवन धारण किए हैं अभी वो उनका जीवन आनंद भरा जीवन है। So what we need to have is the life of enthusiasm. और क्योंकि इसका कहने का अर्थ ये है कि जो हमें जीवन चाहिए वो जीवन जुनून से भरा होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। So we have to be always active for the kingdom of God. तो इस वजह से हमको हर एक समय परमेश्वर के राज्य के लिए तत्पर होना है। Actually the deep sleep is a spirit. एक तो वास्तव में जो गहरा वाला सोना वो एक आत्मा है। You need to break the spirit. आपको उस आत्मा को तोड़ना है। So if you do not break that spirit, what will happen? I will tell you. अगर आप उसको नहीं रोकेंगे, नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा मैं बताऊंगा। If you have the spirit of deep sleep, your eyes become closed and your ears become closed, dumb. और आप अगर वो आत्मा अगर आपके साथ रहेगा तो आपका आंख और कान बंद पड़ा रह सकता है। So when you come to the book of Isaiah chapter number 29, अगर हम यशाया उसका 29 अध्याय को देखेंगे 10th verse और 10वां आयत, for the Lord has poured out upon you the spirit of deep sleep. और परमेश्वर ने आपके ऊपर गहरे नींद वाला आत्मा छोड़ा है। And has closed your eyes. और आपके आंखों को बंद कर दिया है। And the prophet and your rulers, the seers has he covered.
और Yes. आपका भविष्यद्वक्ता, आपका राजा और तुम्हारा जो दर्शन देखने वाला, वो सब कुछ कवर हो चुका है, बंद हो चुका है। And if you have the spirit of deep sleep, you cannot see visions. और अगर आपके पास वो गहरा सोने वाला आत्मा है तो आप दर्शन नहीं देख And सकते। if you have the spirit of deep sleep, you cannot hear the voice of God. अगर आप गहरा सोने वाला व्यक्ति हैं तो आप परमेश्वर का आवाज भी नहीं सुन सकते। So when we come to the book of Romans, chapter number 11, और रोमियो के पुस्तक उसका 11, 11वां अध्याय 8th words. 8वां पद, According as it is written, God has given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear. क्योंकि परमेश्वर ने क्योंकि वचन में इस तरह लिखा जाता है, परमेश्वर ने उनको इस प्रकार का आत्मा दिया है, सोने वाला आत्मा, ताकि वो ना देख सके उनके आंखों से, ना उनके कानों से सुन सके। So if you have the spirit of deep sleep, you lost your vision. तो अगर आप गहरा सोने वाला व्यक्ति हैं, वो आत्मा आपको मिला है, तो आप दर्शन नहीं दे सकते। You cannot hear the voice of God. और आप वो परमेश्वर का आवाज भी नहीं सुन सकते। And if you have the spirit of deep sleep, you are just like a blind person and who is walking on the road. और अगर वो सोने वाला आत्मा, गहरे सोने वाला आत्मा आपके साथ है, तो आप एक अंधे व्यक्ति के समान है जो रोड पे चल रहा है। I'm not talking about a normal sleep. That is necessary. मैं ये जो साधारण सोना है 6 घंटे से 8 घंटा, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो आवश्यक है। And who is sleeping, I will tell you. कौन सो रहा है मैं बता रहा हूँ। Actually, what today morning pastors preach. आज के सुबह पास्टर क्या प्रचार किए थे? You are the lion of आप किसका सिंह है? you are the lion of Judah. आप यहूदा का सिंह है। So can you read the verse, the book of Genesis chapter number 49 verse 9? उत्पत्ति उसका 49 verse 9. 49 का Judah is a lion's whelp. Small lion. Judah is a small lion, young lion. यहूदा एक छोटा सिंह था। From the prey, my son, thou art gone up, and he stooped down, he couched as a lion, and as an old lion, who shall arouse him up? वो शिकार करने के बाद हिंदी पढ़ो तो। Genesis chapter number 49 verse 9. यहूदा सिंह का बच्चा है। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, हाँ। तू आहेर करके गुफा में गया है, हाँ। और सिंह अथवा सिंहनी के समान दब कर बैठा गया, हाँ। फिर कौन उसको छेड़ेगा? कौन उसको छेड़ेगा? What happened? Actually, he is a young lion. वो एक युवा सिंह है। Actually, you all are young lions and lioness. आप एक युवा सिंह हैं वास्तव में। Hallelujah. हालेलुया। But what happened now for this Judah lion? ये यहूदा का सिंह के साथ क्या होता है? It had the prey, it had the food. उसके पास शिकार है, खाना है, And he had the food. वो खाने के बाद So it's just like you're sleeping like anything. और वो वैसे छोटे बच्चे वो गुफा में सोया हुआ, Old lion like he is sleeping now. वो एक बूढ़ा शेर के सिंह के समान सोया है, And he is not awaking. और वो उठ नहीं रहा है। So now I want to encourage you. You are a young lion and lioness, and you do not sleep like others. You need to arise for the kingdom of God. मैं आपको यह कह के उत्साहित करना चाहता हूँ, आप युवा सिंह और सिंहनी हैं, आप बूढ़े सिंह के समान मत सोया रहे, आप उठे और परमेश्वर के राज्य के लिए। So actually, who is sleeping? वास्तव में कौन सो रहा है? And why the people are sleeping? और क्यों लोग सोते हैं? When we come to the book of Proverbs, और हम लोग नीति वचन में अगर आएंगे, chapter number 19 verse number 15, और 19 उसका 15वां आयत में हितोपदेश, laziness cast into a deep sleep. Laziness cast into a deep sleep. और आलस्य आपको गहरे नींद के तरफ ले जाता है। And an idle soul shall suffer hunger. और Idle soul. If you are sitting simply, you will feel hunger. आप वैसे ही बैठने वाला व्यक्ति भूखा मरेगा। Yeah, so that is the things. Bhukha marega. So if you are lazy, you will fall asleep. और अगर आप एक लेजी व्यक्ति हैं तो आप सो जाएंगे। Yeah, so if you are lazy, you will feel hunger and die.
अगर आप आलस वाला व्यक्ति हैं तो आपको भूख लगेगा और आप मर जाएंगे। So why the people are falling into deep sleep? क्यों लोग गहरे सोने में जा रहे हैं? Laziness. उसका कारण है वो आलस्यपन। So laziness will make you fall into deep sleep. और आलस्यपन आपको एक गहरे नींद में लेके जाता है। If you want to do something for the kingdom of God, you have to quit your laziness. अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने आलस्यपन को छोड़ना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। What the proverb says? वो नीति वचन में क्या लिखा है? Sleep, सो again sleep. और फिर से सो जाओ, Like, if you again sleep, और फिर से सोना, then the poverty will come like a stranger into your house. और तब क्या होता है? एक गरीबी एक व्यक्ति के समान, अनजान व्यक्ति के समान आपके घर में प्रवेश करता है। Actually, that poverty is just like a stranger. It's going. एक वास्तव में गरीबी एक अनजान व्यक्ति समान होता है, वो ऐसे ही घूमता रहता है, चलता जाता है। Actually, it's a stranger for you. He did not want to enter your house. वो तो गरीबी वास्तव में केते लोग बुझी पारु छ। गरीबी वास्तव में एक बहुत बड़ मैसेज है। गरीबी वास्तव में एक अनजान व्यक्ति के समान है, आपके घर में नहीं प्रवेश करना चाहिए, वो तो ऐसे ही गुजर के निकल जाना चाहिए। Actually, he doesn't know you. That's why he need to go like this. वास्तव में वो आपको जानता ही नहीं, उसको आपको घर का पता मालूम नहीं, वो तो उसको ऐसे ही जाना होता है। But while he was going, he saw there is a house, there is a person sleeping like anything. So actually, he has a habit to accompany with the lazy. और वो जैसे जाता है और देखता है वहाँ पे वो सोया हुआ व्यक्ति, आलस व्यक्ति वहाँ पे पड़ा हुआ है और बोलता है कि मैं जाऊँगा वहाँ पे। वो जो आलस्य वाला व्यक्ति होता है उसके साथ गरीबी दोस्ती करता है, वहाँ पे जाके रहता है। So the poverty entered. उसके बाद गरीबी घर में प्रवेश करता है। So if you lazy, the poverty will enter into your house. अगर आप एक आलस भरा व्यक्ति हैं तो आपके घर में गरीबी घुसेगा। What the next verse says? और उसके बाद का वचन क्या कहता है? Open your eyes. अपने आंखों को खोल। You will get whatever you need. जो भी तुम्हें चाहिए सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। So if you want prosperity in your life, you need to open your spiritual eyes. अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी बहुतायत आए तो आपको आंखें खोलना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। So poverty is a spirit. It will enter to a house those who are lazy. वास्तव में एक गरीबी एक आत्मा है, उनके घर में घुसता है जो लोग आलस होते हैं। But if you are enthusiastic, never ever poverty will enter into your house. अगर आप एक जुनूनी वाला व्यक्ति हैं तो आपके घर में गरीबी कभी नहीं घुस पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And again, and Proverbs chapter number 10 verse number 5. नीति वचन उसका 10 उसका 5वां आयत अगर हम लोग पढ़ेंगे। And he become poor that deal with a slack hand. वो 4 and 5. 4 और उसका 5 पढ़ेंगे। वो एक गरीब बन गया जो खाली हाथ रहा। Yeah. So can you read it in Hindi? जो काम में ढिलाई करता है हाँ। वह निर्धन हो जाता है, हाँ। परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। So next word. बुद्धिमान संतान धूप काल में फसल बटोरता है, हाँ। परंतु जो संतान कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है हाँ। वह लज्जा का कारण होता है। So who is the person who is sleeping? वहां पे सोने वाला व्यक्ति कौन है? That time is the time of harvest. जो वो समय जो था कटनी का समय था। Imagine that you have a paddy field. अगर सोच के देखिए आपका paddy field or a rice field. हाँ, वहाँ पे धान का खेती कर रहे हैं। So imagine that it is the time of harvest. और सोच के देखिए अभी कटनी का समय है। But you are thinking that okay, I don't feeling now, so I'm not feeling good now, so I will not do it. I will do it after 2 months. और आप उस समय बोलते हैं कि नहीं कटनी का समय तो हो चुका है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, जब 2 महीने बाद काटूंगा। Will that seed or will that fruit be there after 2 months? क्या वहाँ पे 2 महीने बाद वही धान रहेगा वहाँ पे? So now mango season. Every day I'm having 5 kg mango after coming here.
Now it's mango season. हाँ. Every day I'm having 5 kgs mango. मैं अभी आम का सीजन है और जब कभी भी आता हूँ तो आम लेके यहाँ से जाता हूँ। I'm eating 5 kg a day. नहीं लेके जाना। Okay. So imagine now it's a season. Now ये it's a सीजन है। See, in that season now it's almost got ripe, isn't it? हाँ, अभी ये सही समय है। Yeah. So if I'm not plucking that mango in this season, अगर- after 3 months, if I'm going to pluck, will I get? अगर मैं वो फल को ना तोड़ूं तो 3 महीने बाद क्या वो फल वैसा ही रहेगा क्या? नहीं. So a lazy person, a foolish person will sleep at the time of harvest. वो एक मूर्ख व्यक्ति जब कटनी का समय होता है वो सोया पड़ा रहता है। Means when he will sleep at the time of harvest. हाँ, वो कटनी के समय सोया पड़ा रहता है। So now my question, मेरा प्रश्न ये है, in the spiritual world, what time we are now? आत्मिक संसार, आत्मिक जीवन में अभी हम कौन से समय में हैं? Now we are in the time of harvest. अभी हम लोग कटनी के समय में है, उपस्थित हो India चुके is हैं। going to see a great harvest that India has never seen before. भारत में एक बहुत बड़ा समय कटनी का समय है जो अभी तक भारत में नहीं हुआ है, ऐसा कटनी का समय आ चुका है। Lakhs of people are going to enter into the church of God in India. ओ बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। So it is the time of harvest. तो ये समय कटनी का समय है। In this time of harvest, God is telling, do not sleep, do not slumber, but you have to awake. ओ परमेश्वर इस कटनी के समय में आपसे बात कर रहा है, बोलता है ना सो ना ऊँगो क्योंकि अभी सोने का समय नहीं है। Awake in the prayer. ओ प्रार्थना में उठ खड़े हो जाओ। Awake in the reading of the Bible. ओ बाइबल पढ़ने में उठ खड़े हो जाओ। Awake in fasting. अब उपवास करने में जागरूक हो जाओ। Then you will be a part of this harvest. ओ आप इस कटनी का एक भागी होने वाले हो। So if you want to become a part of this harvest, you have to awake in the spiritual realm. अगर आप चाहते हो कि मैं इस कटनी के समय का सहभागी बनूं तो आपको उठना होगा। Hallelujah. हालेलुया। Quickly read Proverbs chapter 23 verse number 21. ओ नीति वचन उसका 23 उसका 21वां आयत को अगर पढ़ेंगे। For the drunkard and the glutton shall come to poverty. ओ जो मतवाले लोग हैं और क्योंकि पियंकड़ और पेटू दरिद्र हो जाएंगे Next word, and the drowsiness shall. और उनका क्रोध उन्हें चिथड़े पहनाएगी। और एक बार पढ़िए उसको। क्योंकि पियंकड़ और हाँ, क्योंकि पियक्कड़ पेटू दरिद्र हो जाएंगे और पेटू लोग दरिद्र हो जाएंगे। दरिद्र हो जाएंगे। Next word. और उनका क्रोध उन्हें चिथड़े पहनाएंगे। So what is the meaning? एक बार You got now? You got now? And if you sleep, अगर आप सोओगे, if you sleep continuously, if you fall into a spiritual sleep, you will wear the old clothes. अगर आप वैसे ही पड़े रहोगे तो आप Old cloth कपड़ा, old कपड़ा, पुराना कपड़ा. आप पुराना कपड़ा को ही लेके चलोगे। Means, if you want to wear the new clothes, the अगर spiritual, आप नया कपड़ा चाहते हो पहनना, which means if you want new gift or if you want new clothes from God, अगर आप परमेश्वर से नया कपड़ा चाहते हैं, कपड़ा in the sense that is the glory of God, the gift of God. कपड़ा का अर्थ है परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का वरदान। So आपको नया कपड़ा चाहिए तो आप स्लीप से उठना चाहिए। अगर आपको नया कपड़ा चाहिए तो आपको सोना नहीं है, आपको जागना है। Hallelujah. Hallelujah. If you want the gift of God, if you want the gift of Holy Spirit, and if you want the prophecy or if you want the power of healing, you need to wake up in the spirit. आपको अगर पवित्र आत्मा का दान वरदान चाहिए, भविष्यवाणी का दान वरदान और हीलिंग का चाहिए तो आपको उठना होगा और परमेश्वर के सामर्थ्य से भरना होगा। So this meeting, God is putting you new clothes. ओ परमेश्वर इस मीटिंग में आपको नया कपड़ा देने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So in order to receive the new clothes,
we need to awake in the spirit. अगर आप वो नया कपड़ा चाहते हैं तो आपको आत्मा में उठना होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So why God is asking you to awake? परमेश्वर क्यों आपको जगाना चाहता है? Why God is telling that you don't sleep like others? क्यों परमेश्वर चाहता है कि दूसरों के तरह मत सो? I would like to give you verses. मैं आपको कुछ वर्सेस दूंगा, कुछ वचन दूंगा। 1 Thessalonians chapter number 5 verse number 6. पहला थिस्सलुनी, Yeah. हाँ, Chapter number 5 verse 6. 5वां अध्याय उसका 6वां वचन। Therefore let us not sleep as do others. तो आइए हम दूसरों के समान ना सोएं। Yeah, दूसरों के समान ना सोए means your neighbor may be sleeping इसका hours and hours. इसका अर्थ है आपका पड़ोसी हो सकता है सोया है लेकिन आपको नहीं सोना है, Because you have a calling, क्योंकि आपके ऊपर एक बुलाहट है, you have a mission, आपके ऊपर एक मिशन है। you are a soldier in the battlefield. ओ आप युद्ध क्षेत्र में एक योद्धा हैं। So you don't sleep like others. ओ इस वजह से आप दूसरों के समान ना सो। You are a soldier who is holding the weapon and standing in the boundary of your country. ओ आप इस प्रकार का व्यक्ति है, एक योद्धा है जो अपने हाथों में हथियार लेके बाउंड्री के पास खड़ा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। War is going on. ओ युद्ध चल रहा है, So you have weapon आपके पास हथियार है, and you are standing in the border आप सरहद में खड़े हुए हो। holding the gun. If you are sleeping, what will happen? ओ आप बंदूक लेके वैसे ही सोए पड़े हो तो क्या होगा? Bullet चलेगा. Bullet will hit into your chest. गोली चलेगा, आप मरेगा. So जीना चाहिए तो आप उड़ना चाहिए. Hallelujah. हालेलुया। So if you sleep, you will die in the battle. अगर आप सो जाओगे युद्ध क्षेत्रों में आप मर जाओगे। So you are a soldier standing in the battle. So you need to awake in this, spiritual battle. आपको जानना है कि आप एक योद्धा हैं, आपको उठना है क्योंकि आप युद्ध क्षेत्र में हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And again, फिर से Ephesians chapter number 5 verse 14. इफिसियों के पुस्तक में 5 उसका 14वां आयत को देखेंगे। Yeah, Ephesians 5 verse 14. 14 उसका 5। Wherefore he said, awake that who sleep, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Ephesians 5 verse 14. 5 उसका 14। इस कारण वह कहता है, हाँ. हे सोने वाले जाग हाँ. और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So if you want to have the light of Christ, you need to awake. आपको अगर वो ख्रिस्त का, वो मसीह का ज्योति चाहिए तो आपको उठना होगा। Hallelujah. हालेलुया। Actually, a person who is having spiritual sleep, he is similar to a dead person. अगर वास्तव में जो आत्मा में सो जाता है वो एक मरे हुए व्यक्ति के समान है। Yeah. See, actually, what the Bible says. Oh, the person who is sleeping, awake from death. बाइबल में क्या लिखा गया है? वो जो सो गया है वो मुर्दों में से उठ जाए। Yeah. So if you are in a spiritual sleep, you are similar to a dead person. अगर आप आत्मिक रीति से सो चुके हैं तो आप एक मुर्दे के समान हैं। Yeah. So a dead person can do anything. क्या एक मरा हुआ व्यक्ति कुछ कर सकता है? कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है. So आपको कुछ करना चाहिए तो आप उड़ना चाहिए. So if you want to do something, if you want to do something, you have to wake up. हाँ, तांकर थी बेसी मारबो जेहेतु से पहुँचन। Yeah. So if you want to do something for the kingdom of God, you have to awake in the spiritual realm. अगर आपको आत्मिक रीति से कुछ करना है तो आपको आत्मिक क्षेत्र में आपको उठना है, उठ खड़ा होना है। Hallelujah. हालेलुया। Romans chapter 13 verse 11. रोमियो 13 उसका 11वां पद। 11. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. और उस समय को पहचान कर ऐसा ही करो,
इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हाँ। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की तुलना से अब हमारा उद्धार निकट है। हमारा उद्धार निकट है, मीन्स आवर salvation is very near. हमारा उद्धार बहुत ही निकट है। What is that salvation? उद्धार क्या है? You know, that is the second coming of Jesus. वो उसका अर्थ है यीशु का दूसरा आगमन। And all the situation and all the things that is going on around is show that Jesus is going to come back soon. और जो भी आप परिस्थिति देख रहे हैं, जो भी परिस्थितियां उपज रही हैं आज, इसका अर्थ ये है, सिंबल ये है कि यीशु जल्दी दोबारा आने वाला है। Hallelujah. So we need to awake in the spirit. इस वजह से हमको आत्मिक रीति से जागते रहना है। So knowing the time we need to awake. Knowing time you need to awake. ये समय को जानते हुए हमको जागे रहना है। Imagine I have an exam after 1 week. सोच के देखिए, मेरा एक सप्ताह के बाद कुछ परीक्षाएं हैं, एग्जाम है। I got the exam date. और मेरे पास वो एग्जाम का तारीख आ चुका है, परीक्षा का I तारीख आ paid चुका the है fees. और मैं फीस भी दे चुका हूँ। So what I will do? तो मैं क्या करूँ? So I will simply sleep. क्या मैं सो सकता हूँ क्या? Knowing the date, I will study like anything. और वो तारीख तो जान चुका हूँ, इस वजह से उसी प्रकार मुझे तैयारी भी करना So होगा। at the same way, know the time where you are right now. तो इसी प्रकार अभी आप समय को जान लो कि आप किस समय में हो। We are in the end time. हम लोग अंतिम समय में हैं। We are in the midst of end time revival. हम अंतिम समय के बीच में हैं। I personally believe that many of us do not want the coffin box. मैं व्यक्तिगत रीति से जानता हूं कि बहुत सारे लोग कॉफिन बॉक्स में नहीं, I personally believe that I do not want a coffin box. अब मैं कॉफिन बॉक्स जो मुर्दों को गाड़ते हैं, वो कॉफिन बॉक्स मुझे नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ। I believe. मैं भी ये विश्वास करता हूँ। Why? क्यों? Because I believe that the trumpet will blow, Jesus will come, I will go. क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ, मेरे मरने से पहले यीशु आ सकता है और मुझे उठा ले सकता है। Hallelujah. हालेलुया। That's what I believe and that's what I expect. और मैं ये विश्वास करता हूँ, ये उम्मीद भी रखता हूँ। So knowing the time, I need to awake in the spiritual. ये समय को जानते हुए मुझे आत्मा में जागे रहना है। So very quickly I will tell what makes us to fall asleep. Very quickly I will tell why people are falling spiritual sleep. मैं बहुत जल्दी लोग आत्मिक शयन में लोग क्यों जाते हैं, मैं जल्दी बताना चाहता हूँ। Are you getting what I'm telling? मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? Okay. So First King chapter number 19 verse number 5. पहला राजा उसका 19 उसका 5 verse number 5. उसका 5वां। There we can see a person named Elijah. यहाँ पे हम लोग एक व्यक्ति एलिया के बारे में देखते हैं। Yeah. But he himself went a day journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree, and he sat and slept under the juniper tree. 5th verse. 5वां पद पढ़े। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। Yeah. उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। Yeah, तब so- उसने खाया और पिया Enough. और फिर लेट गया। There we can see a man of God who named Elijah, यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम एलिया है देखते हैं, and he was sleeping under the juniper tree. और वहाँ वो व्यक्ति एक झाऊ के पेड़ के नीचे सो रहा था। And he said, Lord, it is enough. My ministry is enough. And everything is enough. It's better to die. And he was sleeping. और वो यह कहता है कि मेरा सेवकाई पर्याप्त हो चुका है, मैं बहुत ही थक चुका हूँ, अभी सोना चाहिए मुझे। Yeah, what made him fall asleep? उसको कि कौन सा चीज सोने में मजबूर किया? What made him to fall asleep? वो उसको सोने में कौन सा चीज मजबूर किया? Yeah, tell me. क्या बताओ मुझे? What made him to fall asleep? उसको कौन सा चीज सोने में मजबूर किया? That fear. वो डर। That fear he got from Isabel. इस इजबेल के पास से, इजबेल मतलब रानी। Actually, if he is falling if he is sleeping without food, after having food, will he sleep? अगर हम देखेंगे यहाँ पे वो
बिना खाने के लिए खाना नहीं खाया था, इस वजह से सो गया था। अगर ऐसा सोचते हैं तो वो जब उठा खाया फिर क्यों सोया? Yeah, actually, food is not the problem. ओ, कहने का अर्थ है खाना वो समस्या नहीं था। Actually, that sadness, that fear, वो that made him to sleep. वो डर, वो तकलीफ, वो पीड़ा उसको सोने में मजबूर किया। Imagine you have a distress, sadness in your heart. आप सोच के देखिए, आपके अंदर बहुत सारा पीड़ा है, You have a fear inside your heart. आपके अंदर भय है। So, can you able to sleep peacefully? क्या आप अच्छे से सो सकते हैं? क्या शांति से सो सकते हैं? No. नहीं। I will give you an example from the Bible. मैं एक बाइबल से उदाहरण देता हूँ। Yeah, just come to the book of Luke chapter number 22 verse number 45. लूका उसका 22 22 verse number 45. और उसका 46 पद को अगर देखेंगे, There we can see the disciple of Jesus. वहाँ पे हम लोग यीशु के चेलों को देखते हैं। Jesus went to the Gethsemane and prayed. और यीशु गेत्सेमनी जो बागीचा था वहाँ पे जाके प्रार्थना किया। And when he came down, he saw the disciple were sleeping. और वहाँ से जब उतरा वो देखता क्या है कि चेले लोग सो चुके हैं। Why they slept? Read, please read. वहाँ पे तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। उदासी के बारे में सोता means in English it says that they are sleeping because of sorrow. वो उदास हो चुके थे, तकलीफ के चलते वो सो गए थे। So you know, if you have a sadness or if you have a fear in your heart, you cannot do anything. अगर आपके हृदय में कुछ पीड़ा और या फिर भय हो तो आप सो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। So let all the spirit of fear want to go out from your heart. तो इस वजह से आपके अंदर से हर एक डर की आत्मा आपके अंदर से भागना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So when the angel of God make him awake, और जब स्वर्गदूत उनको उठाया and he woke up और वो उठा and he saw the food. और वो खाना देखा। What food he saw? वो खाना क्या था? So he saw the food which was prepared from heaven. और वो खाना देखा जो खाना स्वर्ग से प्रस्तुत किया गया था। So if you want to see the spiritual food, you want to awake. अगर आपको आत्मिक खाना देखना है तो आपको जागना होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So the fear will make you sleep. वो डर आपको सुला सकता है। So if you are bold in the spirit, you know, you will be very active. अगर आप आत्मा में दृढ़ हैं तो आप बहुत एक्टिव रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Actually, see, imagine there is water up to my knee. अगर सोच के देखिए, पानी घुटने तक है। So is there any necessity to swim? Is there any necessity to swim? तो घुटने तक पानी है तो क्या तैरना जरूरी है? क्या No. आवश्यक है? क्या Water is up to my waist. अगर सोच के देखिए, मेरे कमर तक अगर पानी है, Is there any necessity to swim? क्या तैरना आवश्यक है? क्या नहीं। So, but when the water come above my head level, necessary to swim. अगर अब जब मेरे गर्दन, मेरे सिर तक आ जाएगा पानी तो वहां पे मेरे लिए तैरने की आवश्यकता है। Which means when the problem come more and more, it's the time you need to wake up in the spiritual realm. तो कहने का अर्थ है, जब प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा आता है तब आपको उठना है, आत्मिक क्षेत्र में आपको उठना है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. When the problems are more, you have to be more active in the prayer. जब समस्या ज्यादा है तो आपको प्रार्थना में और ज्यादा एक्टिव हो जाना है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Luke chapter 22 verse number 46. लूका 22 उसका 46 पद अगर देखेंगे, Yeah, it's Bible says like this. Yeah. और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। Yeah, so if you awake and pray, you will not enter into temptation. अगर आप जागे रहोगे और प्रार्थना करोगे तो आप परीक्षाओं में नहीं जाओगे, नहीं पड़ोगे। Hallelujah. हालेलुया। So first point, the sadness and sorrow will make you sleep. पहला पॉइंट ये है, जो तकलीफ और भय आपको सुला सकता है। But you have to remove the fear from the bed of fear
by using the word of God, you have to remove the fear. ओ परमेश्वर के वचन के द्वारा आप अपने भय को पहले दूर करना है आपको। And with the prayer, you have to remove the the fear. आप प्रार्थना के द्वारा आपका भय को दूर करना है। And now the second point. ओ दूसरा पॉइंट ये है, The sleeping in the midst of message. अगर आप इस संदेश अभी जो प्रचार किया जा रहा है उसके दौरान अगर सो जा रहे हैं। Acts chapter 20 verse number 8. ओ प्रेरितों का काम, ध्यान से सुनो जिन मैंने स्विच हो। Apostle Paul, he was preaching. पौलुस प्रचार करुतिले। Apostle Paul, he was preaching. प्रेरित पौलुस प्रचार कर रहा था। He was an eloquent preacher. वो एक भयंकर प्रचारक था। He was a powerful preacher. वो एक सामर्थी प्रचारक था। See. और देखो क्या होता है। If Apostle Paul's preaching time people slept, then this poor Rajesh. प्रेरित पौलुस के जमाने में वो प्रचार कर रहा था और लोग सो जा रहे, तो मेरे अजेस के बारे में। Yeah, so if you sleep also, I will not tell anything. अगर आप सो जा रहे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। Because Paul's message people slept. क्योंकि पौलुस प्रचार कर रहा था, लोग सो रहे थे। So what happened? तो हुआ क्या? So what happened? क्या हुआ? There was lot of light. वहां पे बहुत सारा लाइट था। But in the midst of the light, this person slept. और वो लाइट के बीच में वो व्यक्ति सो गया। Actually, gospel is light. क्योंकि वास्तव में जो सुसमाचार है वो एक ज्योति है। Word of God is light. वो परमेश्वर का वचन ज्योति है। But in the midst of the word of God, somebody is sleeping. और इस ज्योति में, इस परमेश्वर के वचन के दौरान कोई सो रहा है, ज्योति में सो रहा है। Why? क्यों? Because if the word of God enter into your heart, your thought will change. क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Now you are thinking that you are a Billy. Now you are thinking that you are a cat. Now you are thinking that you are a cat. अभी आप सोच रहे हो कि आप एक बिल्ली हो। Because Satan said that you cannot do anything, you are a cat. अगर आप बोल रहे हो कि मैं तो एक बिल्ली समान हूं, मैं क्या कर सकता Yeah, हूं? Satan said that the elephant is the strongest animal in the jungle. और शैतान ने बोल दिया है कि जंगल में सबसे सामर्थी जीव है हाथी। But the word of God enter, it will open your heart and tell that you are not a Billy. आपका एक शेर की तरह। ओ जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में प्रवेश किया, आपका सोच बदल दिया और आप जानने लगे कि आप बिल्ली नहीं हो, आप एक सिंह के समान हो। Hallelujah. हालेलुया। So if the word of God enter, you will get light. ओ जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन प्रवेश करेगा, आप ज्योति पाओगे। Your attitude will get changed. Your attitude will get changed. आपका व्यवहार बदल जाएगा। Yeah, your talking will get changed. आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा। So understanding this, ये समझते हुए devil will give you the spirit of sleep. ओ शैतान आपको इस मैसेज के बीच में सोने का वाला आत्मा डाल देगा। So somebody if sleeping in the midst of preaching, it does not mean that they are experiencing the peace. The Satan is allowing them to sleep. ओ जब कोई भी मैसेज के दौरान, अभी प्रचार के दौरान सो रहा है, तो ये वजह नहीं है कि वो शांति पाया है और सो रहा है। इसका अर्थ है शैतान नहीं चाहता कि आप वो ज्योति पाओ और आप बदल जाओ, इस वजह से आप सोने लगते हो। Because Satan always want you to be like this. बस क्योंकि शैतान हर वक्त चाहता है कि आप वैसे ही रहो। Satan always want you be like a cat. और शैतान चाहता है हर वक्त कि आप एक बिल्ली के समान रहो। Always seeing that machali, meowing like a meow. So that's शैतान हर वक्त चाहता है कि आप म्याऊ म्याऊ करते रहो। But if once the word of God enter your heart, you won't meow like a pussy cat, but you will roar like a lion. ओ जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर प्रवेश करता है, आप बिल्ली के समान म्याऊ म्याऊ नहीं करते, लेकिन आप गरजने लगते हो, गुर्राने लगते हो शेर के समान। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And most of the time, why pastors are telling, making you to say hallelujah, पासवान लोग जो प्रचारक लोग रहते हैं, क्यों बार बार आपको हालेलुया हालेलुया बोलते हैं मालूम है? If somebody are sleeping,
अगर कोई सोया भी रहता है, let him awake and hear this word. उसको उठाओ और ये वचन को सुनाओ उसको, So that they can change their life and attitude. ताकि वो उनका जीवन शैली को बदल दे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So the word need to enter. वो वचन आपके अंदर प्रवेश करना है। Yeah, word, hallelujah is an alarm which will make you awake. हालेलुया एक अलार्म के समान है ताकि वो उठाए आपको। So if you hear the word of God, your knowledge will increase. जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, आपका ज्ञान वृद्धि पाता Your है, lifestyle will change. आपका जीवन शैली बदल जाता है, Hallelujah. Your thought will change. आपका सोच बदल जाता है। You will get exhortation in your life. आप एक उठावट को, आप उठना महसूस करने लगते हो। You will get deliverance. आप छुटकारा पाते हो, You will get blessing. You will get blessings. आप आशीष पाते हो, You will get goodness. Goodness. आप उत्तम वस्तुओं को पाते हो। So Satan know all this. That's the reason he's making us. शैतान इस बातों को भली भांति जानता है, इसलिए वो आपके अंदर सोने वाली आत्मा को डाल देता है। So whenever the time of preaching, if you are feeling sleepy, you have to understand that it is the time of deliverance. जब इस वजह से आपको इसको मालूम रखना है कि जब भी प्रचार के दौरान आपको नींद आता है तो आपको छुटकारा चाहिए। Hallelujah. So if the spirit of sleep come into your life, what will happen next? जब If the spirit of sleep come to your life, what will happen next? और जब सोने वाली आत्मा आपके अंदर आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है? You will sleep in the midst of Gethsemane. आप गेत्सेमनी में के बीच में आप सो जाते हो। Actually, what is Gethsemane? वास्तव में गेत्सेमनी क्या है? What happened there in Gethsemane? गेत्सेमनी में क्या हुआ था? Jesus was praying. यीशु उस बागीचे में प्रार्थना कर रहा था। It is a crucial time. ये एक बहुत तकलीफ भरा समय था। Even his sweating turned as blood and falling into the ground. यहाँ तक कि उसका यीशु का पसीना भी लहू बन गया और वो नीचे मिट्टी में गिरने लगा। But Jesus, after the prayer, he came down. और प्रार्थना के बाद यीशु उठा और नीचे आया। So what he saw? और वहाँ वो क्या देखता है? He saw the disciple were sleeping. और देखता है कि वो चेले जो हैं वो सोए पड़े हैं। Can you read that? क्या हम लोग उसको पढ़ सकते हैं? Luke 22 verse number 46. लूका 22 उसका 46। Praying, sleeping in the prayer. ओ प्रार्थना के बीच में सो जाना। Yeah, third point, sleeping in the midst of prayer. ओ प्रार्थना के बीच में सो जाना, ये तीसरा पॉइंट है। In the midst of prayer, if you sleep, what will happen? ओ अगर आप प्रार्थना के दौरान सो जाएंगे तो क्या होगा? Yeah, read. और उनसे कहा, क्यों सोते हो? हाँ। उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। So what happened? Jesus said to them, awake, otherwise you cannot stand into the midst of temptation. ओ परमेश्वर यीशु क्या कहता है? उठ जाओ, क्यों सोए हो? अगर तुम प्रार्थना ना करो तो तुम परीक्षाओं में गिर जाओगे। What happened to the people, those who sleep at the time of Gethsemane? ओ जब गेत्सेमनी में जो प्रार्थना करने के वजह सो जाते हैं तो क्या होता है? What happened to them? उनके साथ क्या होता है? What happened? क्या होता है? What happened? What happened next? उनके बाद क्या होता है? The Roman government and Roman soldiers caught Jesus. और उसके बाद यह होता है कि रोमी साम्राज्य का जो सेना थे वो आके यीशु को पकड़ लिए। Actually, for what purpose Jesus called the disciple? What purpose Jesus called the disciple? किस कारण से यीशु ने अपने चेलों को बुलाया था? In order to be with him. क्योंकि वो चाहता था कि वो चेले उनके साथ खड़े रहें। In order to be with him, in order to cast out demons, heal the sick and preach the gospel. That's the reason Jesus selected the disciple. 12 चेलों को यीशु ने क्यों चुना? क्योंकि वो चाहता था कि वो 12 चेले उसके साथ रहें, उस दुष्टात्मा को भगाएं और लोगों को चंगा करें। But now the Roman soldiers caught Jesus. अभी क्या होता है कि रोमी सेना यीशु को पकड़ लेते हैं। What happened next? उसके बाद क्या होता है? All the disciples, those who slept in the Gethsemane, they all run away. जो सारे चेले जो गेत्सेमनी बागीचा में सो गए थे, वो लोग उठ के दौड़ के रोमी सेनाओं को देख के
भागने लगे। जीसस को छोड़कर वो रन गए। यीशु को छोड़ के वो भाग गए। In the midst of problem, if you want to stand firm, you have to be awake in prayer. अगर आपको परीक्षा के समय में अगर साथ खड़ा होना है तो आपको जागे रहना है, जागकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। The people, those who sleep in the midst of prayer, they cannot stand in the midst of problem. और जो लोग प्रार्थना में सो जाते हैं वो लोग प्रॉब्लम में, समस्याओं में खड़े नहीं हो सकते। In the midst of problem, in the midst of difficulty, if you want to stand firm, you have to be awake in prayer. अगर आप समस्याओं के परिस्थितियों के बीच में भी अगर खड़ा होना है तो आपको प्रार्थना में खड़े, जाग के प्रार्थना में खड़े रहना है। Hallelujah. हालेलुया। The people, those who awake and pray, they will not leave Jesus in the midst of problem. वो जो लोग प्रार्थनाओं के बीच में जागे रहते हैं वो यीशु को समस्याओं में नहीं छोड़ते हैं। या बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से ये परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम परिस्थिति आने के बावजूद यीशु को नहीं छोड़ेंगे जो लोग प्रार्थना करते रहते हैं। So in the midst of tempest, in the midst of great wind, if you want to stand strong, you want to awake in your prayer life. अगर आप चाहते हैं कि समस्याओं के बीच में, परिस्थितियों के बीच में दृढ़ रीति से खड़े रहना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना में जागना होगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So first point, पहला पॉइंट, fear will make you sleep. डर आपको सुलाता है। So if you awake, you will get spiritual food. जब आप जाग जाते हो तो आप आत्मिक खाना को पाते हो। And secondly, we saw sleeping in the midst of message. दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कि प्रचार के दौरान लोग सो जाते हैं। Because devil do not want this light to enter into your heart. क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि ये ज्योति आपके अंदर प्रवेश करे। Now we saw sleeping in the midst of prayer. अभी हम लोग देखेंगे प्रार्थना के दौरान, प्रार्थना के बीच में सो जाना। Hallelujah. And there we can see a special person, Mark chapter number 14 verse number 37. Mark. Yeah. Apostle Paul preached and yeah. So okay. Okay, pastor is telling in the midst of a message, preaching. In the midst of preaching, if you sleep, what happen? मैं सेटा के मने पके दो छाड़ी दूती एटा के बहुत जरूरी है। Yeah, I forget to say that. यदि मने पकाली प्रचार समय रे सुईला काना है से सुनो। What happened? क्या होता है सुनो। You know that person slept in the midst of light. वो ज्योति के समय में, ये वचन ज्योति है, उसके दौरान सो गया था। But what happened? उसके बाद क्या हुआ? He fall and dead. वो नीचे गिर गया और मर गया। So at the time of word of God, if you sleep, spiritual deadness will happen. जब आप प्रचार के समय में सो जाओगे तो आत्मिक रीति से मरोगे। Hallelujah. Hallelujah. So at the time of message, if you sleep, spiritual deadness will happen. जब आप प्रचार के दौरान सो जाओगे तो आत्मिक रीति से मर जाओगे। Are you getting what I'm telling? समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? Hallelujah. हालेलुया। Are you feeling sleep? आपको झपकी लग रहा है क्या? नींद लग रहा है क्या? नहीं मरना है भाई। You know, it will change your life. ये आपका जीवन को बदल देगा। You know, after Holy Spirit taught me, I awake from my sleep. जब परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया, मैं अपने नींद से जाग गया। Hallelujah. हालेलुया। You know, all the political leaders, those who are minister or a prime minister, these worldly people, they are sleeping for 3 hours and 4 hours. और जागतिक सांसारिक लोगों को देखो, जो पॉलिटिशियन है, प्रधानमंत्री, कुछ भी मंत्री है, वो देखेंगे तो 3 घंटा 4 घंटा ही सोते हैं। Even school teachers, you know, I was a teacher once upon a time. जो पढ़ाई स्कूल में जो टीचर हैं वो लोग भी, जब ये टीचर थे पास्टर जी, Yeah, see, actually, you know, when the time of exams, we will get that papers, exam papers. हम लोग एग्जाम का पेपर जब रेडी करते हैं एग्जाम के टाइम में, Actually, the nature of students, I will tell you. मैं जो मेरे जो स्टूडेंट हैं उनका चरित्र कैसा है मैं बताता हूँ। After the exam, the next day when the school opened, they will ask, "Sir, where is paper? Where is paper?"
जब उसका उनका चरित्र कैसा है, जब वो एग्जाम देते दूसरे दिन ही जाके पूछते हैं कि सर कहाँ पे हमारा पेपर कहाँ पे है, मार्क देखना है हमें। Not everyone, the people those who study. वो सब लोग नहीं, जो लोग पढ़े हैं वही लोग जाके पूछते हैं। The people those who did not study, they will think that, oh, they will pray. This hour will not give paper for next 1 month. That's what their prayer. लेकिन जो लोग पढ़ाई किए बिना एग्जाम दिए होते हैं वो लोग प्रार्थना करते हैं कि सर 1 महीने बाद 1 महीने तक कोई पेपर कोई मार्कशीट मत ना दे। But because of that, this student, those who are studying, because of their prayer, you know, night time I used to awake and I used to correct the papers. लेकिन ये जो पढ़ाई किए हुए बच्चे हैं उनके लिए वो जब आके पूछते हैं, उनके लिए मुझे रात भर सो जाग के वो उनका मार्क उनका पेपर चेक करना होता है मुझे। The worldly people in their job, they are spending their time in the night without sleeping. How much more the soldiers of God want to do? सांसारिक व्यक्ति वो बिना सोए रात भर अपने काम को समय दे रहे हैं, तो सोच के देखो हमें जो परमेश्वर के राज्य का योद्धा है हमें कितना समय नहीं देना होगा परमेश्वर के राज्य के लिए। Hallelujah. हालेलुया। If you want to be useful for the kingdom of God, you have to be awake spiritually. अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी होना है तो आपको आत्मिक रीति से जागना होगा। Hallelujah. हालेलुया। Quickly read Mark chapter number 14 verse number 37. ओ मरकुस उसका 14 उसका 37-37वां आयत को पढ़ेंगे जल्दी। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू 1 घंटे भी ना जाग सका? Yeah, see, everybody is sleeping. देखिए यहाँ पे हर कोई सो रहा है, But Jesus is specially coming and asking to Simon. लेकिन यीशु खास करके सिमोन के पास आता है और पूछता है, And asking to Simon, can you not able to awake for at least 1 hour? और सिमोन से जाके पूछता है, हे सिमोन 1 घंटे के लिए भी क्या तू जाग नहीं पाया? Why God asked to Simon? आओ सिमोन को क्यों पूछा? Because he has a great calling. क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ा बुलाहट था। And he want to be the first person who preached the gospel in after the day of Pentecost. और वो क्योंकि वही व्यक्ति पहला व्यक्ति बनने वाला था, पेंटिकोस्ट के दिन के बाद वो प्रचार करने वाला पहला व्यक्ति होने वाला So था। Simon, you cannot sleep like others. ओ तो हे सिमोन तू दूसरे के समान सो नहीं सकता। There may be pastors, there may be preachers, those who are sleeping for hours and hours, but if you have a calling, you have to awake. वो वहाँ प्रचारक हो सकते हैं, वो वहाँ सुसमाचार प्रचार करने वाले पास्टर लोग हो सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर अगर बुलाहट है आप सो नहीं सकते क्योंकि बड़ा बुलाहट आपके ऊपर है। Hallelujah. हालेलुया। You have to understand your calling. आपको अपने बुलाहट को समझना होगा। According to that calling, you have to, active in the spirit. बुलाहट के हिसाब से आप अपने जीवन में एक्टिंग करना पड़ेगा, आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Again, we can see another sleep. एक दूसरे प्रकार का सोना हम लोग देखेंगे। Luke 9 verse number 32. Luke 9:32. 9 उसका 32 लुका 9:32. And Peter, read. पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। Peter, John and James, they were sleeping in the Mount Transfiguration. और वहां पे हम लोग देखते हैं यूहन्ना और James and Peter. पतरस और याकूब दोनों वो Peter और पीतर वो पतरस वो लोग सो गए थे वहां पे जो Mount Transfiguration. Glory of God manifested. Can you read that in Hindi? पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। 31st words, can you read 31st? ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। महिमा का पकड़ा रूपांतरण रूपांतरण पहाड़ okay. See, actually, the Jesus, he was there with the full glory. वहां पे यीशु महिमा से भरा हुआ था। So in the midst of that glory, these 3 disciples slept.
और उस महिमा में ये 3 चेले सो गए थे। So, when they woke up, they saw Elijah, they saw Moses, and they saw Jesus. और जब वो उठे वो मूसा को देखे, एलिया को देखे और यीशु को देखे। So, if you want to see the glory of God, अगर आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं, you have to awake in the spiritual realm. आपको आत्मिक क्षेत्र में जागना होगा। There is glory in your church. ओ आप इस कलीसिया में परमेश्वर की महिमा है। There is glory above the pastors. ओ इस पासवानों के पास महिमा है। Oh, but if you want to see that glory in your personal life, you want to awake spiritual realm. अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में वही महिमा को देखना चाहते हैं, तो आपको आत्मिक रीति से जागना होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When Peter, John, and James, when they wake up, they saw the glory. और जब पतरस, याकूब और यूहन्ना जब वहां पे गए, देखे महिमा को देखे। After seeing the glory, Peter said, "It is good to be here." और महिमा को देखने के बाद वो बोले कि हम लोग यहाँ पे हैं, ये अच्छा है। So if you want to feel that sitting at the presence of God is good, you want to see the glory. और अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के बोलते हैं कि ये अच्छा है, तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। If you see the glory of God, you always like to be there in the presence of God. और परमेश्वर की महिमा को अगर आप एक बार देख लिए, तो आप हर वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहोगे। Hallelujah. हालेलुया। Why you people are running to this meeting? Why you are rushing to this meeting? आप इस मीटिंग के लिए क्यों दौड़ भाग करके यहाँ पे आए हैं? I know that you have a lot of things to do in your house. और मैं जानता हूँ कि आपके घर में बहुत चीज करना है, But you came. लेकिन आप आए हो। Why? क्यों? Because once you saw the glory of God, that glory brought you here. और जब क्योंकि आप एक बार कहीं ना कहीं अपने जीवन में तो महिमा को देख लिए हो, वो महिमा के कारण आप खींचे चले आए हो यहाँ पे। The people, those who see the glory, they always want to be with Jesus. वो जो कोई व्यक्ति एक बार महिमा को देख लिया है, वो हर वक्त चाहता है कि परमेश्वर के साथ वो रहे। So if you want to see the glory, you have to awake. और अगर आप महिमा को देखना चाहते हो, तो आपको उठना होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And again, let's read next words. हर दूसरा वचन को जाएंगे। Matthew 13 verse 25. और मत्ती 13 उसका 25। Yeah, can you read that? Matthew 13:25. और 13-25 मत्ती पढ़ेंगे। पर जब लोग सो रहे थे, तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। Actually, you are growing good seed. आप एक अच्छा बीज हो। Yeah. So, but what happened when you are sleeping? The enemy came and put the wild seeds. और जब आप सोए रहते हो, तो शत्रु आके जंगली बीज डाल देता है। Yeah, if you are awake in the spirit, no enemy can enter. और जब आत्मा में आप जागे रहते हो, तो कोई शत्रु घुस नहीं सकता। What is wild seed? What is wild seed? वो जंगली बीज क्या है? Maybe that is quarrel. हो सकता है वो झगड़ा। जन घास ओछे। Quarrels means fighting in the family. हो सकता है आप वो झगड़ा है। Maybe that is disease. हो सकता है वो बीमारी है। Maybe that is debt. हो सकता है कर्जा है। Or different problem that you are facing in your family. आपके परिवार में बहुत सारे समस्याओं को आप झेल रहे हैं। That all wild seeds. वो सारा चीज जंगली बीज हैं। Actually, Jesus came in this world in order to give you life and the life in abundance. और वास्तव में यीशु जगत में क्यों आया? क्योंकि वो जीवन देना चाहता है, और ऐसा जीवन जो बहुतायत का जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। The word of God is a good seed. और जो परमेश्वर का वचन है, वो अच्छा बीज है। And this good seed will give you good fruits. और ये अच्छा बीज आपको अच्छा फल देता है। But if you are awake, these good seeds will give you good fruit. और ये अच्छा बीज जब आप जागे रहते हो, ये अच्छा बीज आपको अच्छा फल देता है। But if you sleep in your spiritual life, the enemy will come and put you the wild seeds. जब आप सो जाते हो, तो शत्रु आके आपके अंदर
जंगली बीज डाल देता है। And sometimes, whenever you are facing the problem, you have to understand that somewhere you fall asleep in the spirit. ओ जब कभी भी आप समस्याओं से गुजर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है, तो कहीं ना कहीं तो आप सो गए हो आत्मिक रीति And से। if you awake in the spirit, no enemy will enter into your life. अगर आप आत्मा में जाग जाओगे तो कोई भी शत्रु आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। Next sleep. Next sleep. अगला सोना, Jonah chapter number 1 verse number 5. जोना यूनुस 1 verse. Jonah? 1 verse 5. यूनुस पुस्तकों 1:5, जोना उसका 1:5। Yeah, but Jonah has gone down into the sides of the ship and he lay and was fast asleep. और जोना क्या करता है, वो जहाज का जो था निचले हिस्से में जाता है और एक जगह ढूंढ के वहां पे सोता है। So why this Jonah slept? और यहाँ पे जोना क्यों सोया? The Jonah's life is, the first chapter of Jonah is a picture of backsliding. और पहला फोटो, पहला चरित्र हम लोग जोना का देखते हैं, वो पीछे परमेश्वर से भागा हुआ व्यक्ति है। God sent him to go to Sambalpur. परमेश्वर उसको संबलपुर भेजा, But he went to Bhubaneswar. लेकिन वो भागा भुवनेश्वर। So at the same way, God sent Jonah to go somewhere else, but he, disobeyed God and went away. उसी तरह परमेश्वर ने जोना को एक जगह पे भेजा, लेकिन परमेश्वर का आज्ञाकारी ना हो के वो दूसरे जगह भागा। Now he entered, he bought the ticket, first class ticket, and went deep inside and he was sleeping. और वो क्या करता है, वो फर्स्ट क्लास टिकट लेता है और नाव के गहरे भाग में जाके सोता है। Now what happened? The wind started to blow against the ship. और क्या होता क्या है, वो हवा उस जहाज के विरुद्ध में कहता है। Everybody praying, calling their own God, but this man of God is sleeping like anything. ओ सारे जो जहाज में बैठे हुए लोग हैं अपने भगवान को, ईश्वर को बुलाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है, सो रहा है। See, how is your spiritual life? ओ तो देखो आपका आत्मिक जीवन किस तरह है। So inside the family there is problem. आपके परिवार में तो प्रॉब्लम है, And inside the church there is some problem. और मंडली में भी, कलीसिया में भी प्रॉब्लम है। And in the job there is problem. आपका जहाँ पे काम करते हो, नौकरी करते हो, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। Always problem. और सारे जगह में प्रॉब्लम। But in the midst of the problem, if you are sleeping, you have to understand that you are a backslider. अगर उस प्रॉब्लम के बीच में अगर आप सोते हो, इसका अर्थ है आप परमेश्वर से भागने वाले व्यक्ति हो। A backslider cannot pray in the midst of difficulty and in the midst of problem. जो परमेश्वर से भागा हुआ व्यक्ति प्रॉब्लम और समस्याओं के बीच में प्रार्थना नहीं कर सकता। So if you are going away from God, it will make you to fall spiritual sleep. और इसका अर्थ है कि अगर आप परमेश्वर से भागते हो तो आप आत्मिक रीति से सो जाते हो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So again one more thing I will tell and I would like to pray for you. और एक चीज बता के मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। First Kings chapter number 3 verse 19. और पहला राजा उसका 3 उसका 19वां पद। There we can see 2 widows. वहाँ पे हम लोग 2 विधवाओं को देखते हैं। And they have one children each. और वहाँ पे हम लोग देखते हैं दोनों के पास एक बच्चा है। And there were nobody in that house except this woman and children. और वहाँ पे हम लोग देखते हैं इस घर में और कोई नहीं है, केवल वो विधवा, वो औरत और वो बच्चा। In the midst of night what happened? In the midst of night what happened? Middle night what happened? रात के समय में, बीच रात में होता क्या है? His mother slept and he fell into deep sleep and he fall over the baby. और वो क्या होता है कि वो औरत रात में सोई पड़ी है और वो इस तरह सोई है कि वो ऐसे मुड़ के उसके बच्चे के ऊपर सो गई। Very rarely we can see this type of news. और इस तरह का खबर हम लोग बहुत कम ही देखते हैं। Normally mothers will be very alert in their heart about their children. और जानते हैं कि माँ जो है अपने बच्चों के लिए बहुत जागरूक रहते हैं। So what happened? The sleep of this woman made his child dead.
और होता क्या है, इस तरह का इस औरत जो सोई, क्या होता है वो उसके चलते वो बच्चा मर जाता है। So I would like to tell you one thing. और मैं आपको एक चीज बताता हूँ। Oh parents, oh mothers and fathers, your spiritual sleep will kill your children. ओ आप माँ बाप पिता जो हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप आत्मिक रीति से जब सो जाएंगे, आपके बच्चे को आप मार रहे हो, मर जाएंगे वो। And lot of women were following Jesus, crying like anything. और बहुत सारे महिलाएं हैं जो यीशु को पीछे भागते हैं और पागलों के समान रोते हैं। But Jesus turned to that woman. और यीशु उस औरत के पीछे देखा। And Jesus said, you do not need to cry about me. You cry about yourself and for your children. और उन औरतों को यीशु देख के बोलते हैं कि मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। This is the era what we are living. We need to cry and pray for more and more for our children. जो समय में हम लोग रह रहे हैं, जो पीढ़ी में हम लोग रह रहे हैं, वो पीढ़ी और ज्यादा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने का समय पीढ़ी we है। are living in an evil world. क्योंकि हम लोग एक बुरे संसार में रहते हैं। And in this world, if your children want to be useful for the kingdom of God, you know your parents, you need to pray for your children. अगर आप चाहते हो आपका बच्चा परमेश्वर के राज्य में के लिए इस्तेमाल हो, तो आप माँ बाप आपको अपने बच्चों के लिए जागकर प्रार्थना करना होगा। Pastors and evangelists, you have spiritual children. पास्टर और इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक, आपके पास आत्मिक संतानें हैं। And if your spiritual children want to be alive for the kingdom of God, you need to awake. आप चाहते हो आपके आत्मिक संतान बच्चे अगर आत्मा में भयंकर रीति से इस्तेमाल हो, तो आपको जागना होगा। And if you awake and pray, your spiritual children also will be, shine like anything for the kingdom of God. अगर आप प्रार्थना करोगे और जागे रहोगे, तो आपके आत्मिक संतान भी परमेश्वर के राज्य के लिए चमकेंगे और भयंकर रीति से चमकेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So first of all, the leaders want to awake. पहला चीज तो यह है कि अगुवाही पे उठना होगा। There was a pastor. और एक पास्टर था। And one day he felt very tired. एक दिन वो बहुत थक चुका था। And he said that today I will sit and preach. और वो बोलता है कि आज मैं बैठ के प्रचार करूंगा। Then suddenly the cunning believers said, believers they said, और वहाँ पे जो विश्वासी थे वो बोले, Pastor, we are very tired, we will sleep and hear. और वो विश्वासी लोग बोले कि आप बैठ के प्रचार करोगे तो हम लोग सो के सुनेंगे। So that is believers. वो है विश्वासी। So pastors and leaders, you have to awake first. तो अगुवे और आपको पहले उठना होगा, जागना होगा। So if you awake, your believers also awake. अगर आप जागोगे तो आपका विश्वासी भी जागेगा। Hallelujah. हालेलुया। Because you are the role model. क्योंकि आप एक आदर्श हो। Hallelujah. हालेलुया। And one more sleep I will tell and I will stop here. और एक सोने के बारे में बताऊंगा और मैं अभी बंद करूंगा। Next time I come, I will tell another sleeping also. और अगली बार जब आऊंगा तो मैं दूसरे प्रकार का सोने के बारे में बताऊंगा। There was a mighty man of God. एक महान सामर्थी परमेश्वर के व्यक्ति थे। You can see him in Judges chapter number 16 verse number 19. अगर हम लोग विचार का पुस्तक देखेंगे, Judges 16 verse number 19. न्याय का पुस्तक 16 उसका 19। And that person name is Samson. और उस व्यक्ति का नाम है सामसोन। He was so powerful. और वो बहुत सामर्थी, He was so anointed. वो बहुत अभिषिक्त था। And he simply tear the lion with the bare hands. और वो खुले हाथों से ही शेर को सिंह को फाड़ देता था। And one day he fall asleep. और एक दिन वो सो गया। Yeah, where he fall asleep? Where he fall asleep? वो कहाँ सो गया था? He fall in the lap of Delilah. और वो एक लड़की, एक दलीला नामक लड़की के गोद में सो गया। What happened? क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? The Delilah remove all his hairs. और दलीला क्या करती है, उसका सारा बाल को काट देती है। Which means Delilah, destroy his anointing. इसका अर्थ है कि दलीला उसका अभिषेक को बर्बाद कर देती And है। he lost the power. और वो अपनी सामर्थ्य को खो देता है। The one who tear the lion with the bare hand.
वो व्यक्ति जो कभी खुले हाथों से सिंह को फाड़ता था, now he is just like a joker, you know, in the temple of Dagon. You know, he is doing something, and all the people were, you know, laughing like anything. और वो अभी क्या होता था, एक बार वो कभी शेर को फाड़ने वाला व्यक्ति अभी जोकर बन गया और उनके मंदिरों में वहां पे जोकर के समान घूम रहा था और लोग उस पर हंसते थे। Just like a monkey, the people in the Dagon, they were, you know, playing with him. और एक बंदर के समान उस वहां के लोग उसके साथ खेलते थे। That sleep lost, you know, caused to lose his anointing. वो सोना उसका अभिषेक को ले गया। So the spiritual sleep will destroy your anointing. और उसका अर्थ है आत्मिक रीति से सो जाना आपका अभिषेक को बर्बाद कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। At the final stage, वो अंतिम स्टेज में at the temple of Dagon, वो दागोन के वो मंदिर में he awake वो उठ गया। and he cried like anything. वो किसी पागलों के समान चिल्लाने लगा, God, ओ प्रभु, once again send your strength upon me. एक बार के लिए अपना सामर्थ मेरे ऊपर डाल। Once again send your anointing upon me. फिर से एक बार अपना अभिषेक मेरे ऊपर डाल। When he awake, God sent his anointing. और जब वो जाग गया, परमेश्वर अपना अभिषेक को ऊपर उसके ऊपर डाल He दिया। shake his body and killed the enemies. ओ उसका अपना हर शरीर को हिलाया और सारे शत्रुओं को मार दिया। And if you awake in your spiritual realm, no enemy can stand against you. ओ आप अगर आत्मिक रीति से जाग जाओगे, कोई भी शत्रु आपके विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता। Hallelujah. हालेलुया। All the people, those who want to awake in the spiritual realm, please stand on your feet. ओ जो कोई भी आत्मिक रीति से जागना चाहता है, अपने पैरों में खड़े हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Take a decision today afternoon. Take a decision today afternoon. ओ आज के शाम के समय में एक निर्णय लें। I will not allow myself to fall in the spiritual sleep. ओ मैं अपने आप को आत्मिक रीति में सोने में नहीं डालूंगा, ऐसा एक डिसीजन निर्णय लें। I won't sleep like others. मैं दूसरों के समान नहीं सोऊंगा, I will awake मैं जागूंगा, because I have a great calling. क्योंकि मेरे ऊपर एक महान बुलाहट है। I am an ambassador of Christ. ओ मैं परमेश्वर का एक दूत हूँ। I am a soldier for the kingdom of God. ओ परमेश्वर के राज्य के लिए मैं एक योद्धा हूँ। I am a lion who want to roar. मैं एक सिंह हूँ जो गरजता है। Let all the spiritual blindness and all the spiritual sleep be vanished right now in Jesus' name. ओ सारा आत्मिक रीति से सोना, आत्मिक रीति से गिर जाना यीशु के नाम से गायब हो जाए। Let the children of God be awake right now in Jesus' name. ओ यीशु के नाम से सारे लोग जाग जाएं। Oh, Rabba, Shata, Rabba, रे Rabba. बाखा था राबा In the name शता of राबा Jesus. ले यीशु के नाम से। Oh, let the power of Holy Spirit move upon each and every one. ओ परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ हर एक के ऊपर बहने लगे। Let their enthusiasm be increased. ओ आपका जुनून बढ़ने लगे। Let their strength be increased. ओ आपका सामर्थ बढ़ने लगे। Let them be like hallelujah, a mighty warrior. आपको एक महान योद्धा बनाए वो। Hallelujah. Take a decision. आप एक निर्णय लीजिए। Every eyes be closed. ओ हर एक आंख बंद हो जाए। Every head bows. ओ हर एक हाथ, Every head bows. हर एक सिर नीचे झुक जाए And ask to God. और परमेश्वर से पूछे God, I want to awaken my spiritual life. और बोले, प्रभु मैं अपने आत्मिक रीति से जागना चाहता I हूँ। want to be with you more and more. मैं आपके साथ और गहरे से गहरे होना I चाहता know हूँ। who I am. मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ Who I know what is my calling. और मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर क्या बुलाहट है। Up to now, I have the spirit of sleeping upon me, but today
tonight, I'm setting free myself. अब तक मैं सोया रहता था, जो सोने वाली आत्मा मेरे साथ था, लेकिन मैं जान गया हूँ मेरा कॉलिंग क्या है। मैं आज के शाम में उठना चाहता हूँ। Everybody start to pray. ओ सारे कोई प्रार्थना करने लगे, Every mouth be open. और एक मुंह खुल जाए। Ask Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा से पूछे, Ask Holy Spirit. पवित्र आत्मा से पूछे। And if you awake, what will happen? और जब आप जाग जाओगे होगा क्या? The Bible says, बाइबल कहती है, arise Zion. ओ सियोन उठ जा, Arise Zion. ओ सियोन उठ जा, And put on your strength. ओ अपने बल को पहन ले। So if you awake, God will garnish you with the strength. ओ जब आप उठ जाओगे, परमेश्वर आपको सामर्थ से भरने लगेगा। Gentiles will see the glory through you. ओ जो अन्य जाति के लोग देखेंगे आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा को। A nation will see the glory through you. ये पीढ़ी आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा देखने वाला है। So today afternoon, I command the people to awake. ओ आज की शाम मैं आप लोगों को आज्ञा देता हूँ कि आप उठ जाओ। Let mighty warriors be arise. ओ सामर्थ्य सेना उठ जाए। Let mighty warriors be arise. ओ सामर्थ्य सेना उठ जाए। Let soldiers be arise. ओ योद्धा उठ खड़े हो जाए। Apostle be arise. ओ प्रेरित लोग उठ जाए। Prophet be arise. ओ भविष्यद्वक्ता उठ जाए। Evangelist be arise. ओ सुसमाचार प्रचारक उठ जाए। Pastors be arise. ओ पासवान लोग उठ जाए। Teachers be arise. ओ नेता लोग उठ जाए। In the name of Jesus, Yeah. let that power manifest. ओ यीशु के नाम से वो सामर्थ बहने पाए, बहने पाए, बहने पाए, बहने पाए। राबा खाता राबासिया, मुंह खोलो, मुंह खोलो। Let the power, let the power, let the power, let that power be manifest. Let the राबा power be बाशाता, manifest. वो सामर्थ को बहने दे, सामर्थ को बहने दे, उपस्थित होने दे। राधा राबाशा, वेदा राबाशा, Adaga, Janada, Ragana, Udaga Bana, the Raga, Shagada, the Rachas, सादा राबा बाखा राबास। Lataraba. मुंह को खोल के चिल्लाने लगो। Everybody start to सब pray. कोई, हर कोई, हर कोई, Everybody start हर to pray. कोई। Let that power be manifest. Let that power be manifest. ओ पावर यहाँ पे बहने पाए, Let the power be manifest. वहाँ पे बहने पाए। Let divine power. ओ सामर्थी, Divine सामर्थ, अलौकिक Let the सामर्थ, divine power. अलौकिक सामर्थ Ha. ले लो। Shata lata. Latara barachadaraga. Fire. आग, Fire. आग, Shata latal bara. Udaga jana the raga chagadara. Let that divine fire. ओ सामर्थ, Ha. सामर्थ, Shabana ragalkana. Udaga jana the raga chagadara. Let the divine power be manifest. Let the divine power be manifest. ओ अलौकिक सामर्थ प्रकट होने पाए। Let the divine power, power, power. ओ सामर्थ, Let the power, ओ सामर्थ, power. Ha, सामर्थ। ha. Labana shagal kanadi. Let the glory manifest. Let the glory manifest. Let the glory manifest. ओ महिमा उपस्थित Let the होने glory पाए, manifest. महिमा उपस्थित होने पाए। Let the glory manifest. Let that glory manifest. Power, power. The divine power, divine power, divine power. Let that power, सामर्थ, power, power. सामर्थ। Let that power, power.